Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444, 2371 7117 and 2371 7106. I am Gaura Dhawanlal and my co-anchor is Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर है। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7117 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार गौरा और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manojji, and Mr. Kohli, once again, welcome to the program. Thank you very much. A quick look at the headlines. South Asia remains brightest growth spot among emerging regions, anchored by India, highlights World Economic Forum report. Benchmark domestic equity indices wrap up week on a flat note, and global crude oil prices log weekly gains. विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट में उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षिण एशिया को भारत के नेतृत्व में सबसे बेहतर विकास करता हुआ बताया गया। बीते कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम सप्ताह के दौरान बढ़त के साथ बंद हुए। Listeners, before we move well into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. In fact, Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब खबरों का सिलसिला। We begin with our first story. South Asia remains the brightest growth spot among emerging regions, with India anchoring the outlook despite mounting trade headwinds. This is a key finding of the World Economic Forum's latest survey, released ahead of the Davos annual meeting. Starting from Monday, the chief economist's outlook notes that India is continuing on its reform pathway by reducing restrictions on employment. It adds that AI adoption is surging alongside investments from US technology firms. We have a report. The global economic outlook has improved slightly but remains uncertain. Rising asset valuations, growing debt, geo-economic shift and rapid AI adoption are creating both risk and opportunities. The survey showed that nearly 53% of chief economists expect global conditions to weaken in the year ahead, down from 72% in September last year. Uncertainty around technology remains high, with 52% expecting AI-related US stocks to fall, while 40% foresee gains. Growth expectations differ across regions, with strong momentum seen in South Asia and East Asia and weak to moderate growth in Europe. South Asia has reclaimed the top spot in the regional growth outlook, according to 2/3 of the economists surveyed. Ayushi Singh for Market Mantra. शरद जी, सबसे पहले यही
यही समझना चाहेंगे कि दक्षिण एशिया और भारत उभरते हुए क्षेत्रों में सबसे अव्वल क्या दर्शा रहे ये बढ़ती हुई ताकत भारत की, बढ़ती हुई ताकत दक्षिण एशिया की? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले IMF ने भी एक कमेंट किया कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है। उन्होंने भारत की जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स थे उसको रिवाइज करके 7-7.5% के बीच में ले गए, जबकि पहले 6.6% थे। तो मुझे लगता है कि साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो उसमें भारत इस समय सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया का ग्रोथ इंजन, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% पे बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था उससे 3 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसका एक्नॉलेजमेंट हमारी इस बढ़ती हुई विकास की दर पर एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। हाँ, ये चले मुंबई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। स्वागत है। मेरा सवाल है कि आप तो ये आपने रत्नाकर जी, आपकी फोन लाइन में प्रॉब्लम लग रही है। रत्नाकर जी, वी रिक्वेस्ट यू एक बारी फिर आप इस कॉल को कट करके यू कैन ट्राई अगेन एंड देन योर क्वेश्चन विल बी टेकन बाय शरद जी। मीनवाइल वेलकमिंग आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम न्यू दिल्ली, अमित, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस मैडम, नमस्कार सभी को। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार अमित सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे 2 सवाल है। एक, जैसे निफ्टी ETF इंडेक्स ETF होता है ना जी, लाइक उसी तरह के अभी नए लॉन्च हुए हैं कि मेटल ETF, ऑटो ETF, कमोडिटी ETF और PSU बैंक ETF, इस तरह के जो ETFs हैं अलग अलग जी, तो क्या ये सारे ETFs में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सर तो वो मेन निफ्टी ETF से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कंपेयर दूसरे सेक्टर के ETF में? और सर दूसरी चीज ये है सर कि जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, जैसे Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं सर, तो अगर मान लो किसी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ है और क्वार्टर Q बेस पे अगर उसका मानने से घाटा से दिखा रहा है, मान लीजिए ईयर ऑन ईयर से 100 करोड़ का मुनाफा है, ठीक है सर, और क्वार्टर में मान लीजिए कंपनी को 70 करोड़ का मुनाफा है मान लीजिए, तो हम किस को देखें, क्वार्टर रिजल्ट को देखें या ईयर ऑन ईयर बेस को देखें? धन्यवाद सर। चलिए, आपका अमित पहला सवाल ETF से संबंधित है। अगर आप निफ्टी ETF को देख रहे हैं, और अब तो लगभग मैं गौरव और मनोज को भी बताना चाहूंगा 110 से ज्यादा ETFs हैं। ETF एक नया निवेश का माध्यम बन रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिनको बोलते हैं। तो क्योंकि जो ETFs अमित सेक्टोरल होते हैं, जैसे मेटल का है, ऑटोमोबाइल्स का है, वो उस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका मूवमेंट बताते हैं, जबकि निफ्टी ETF जो वो ओवरऑल आपको मूवमेंट बताता है। तो इसमें ये आप किस डायरेक्शन में निवेश करना चाहते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। अगर किसी सेक्टर में करना चाहते हैं तो आप उस सेक्टर के ETF पे जाएं। अगर आप ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ को देखना चाहते हैं तो आप निफ्टी ETF पे जाएं। तो ये इसको दोनों को मुझे लगता है कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने पूछा कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखना चाहिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मेरा मानना है जो लंबी अवधि का निवेशक है, दीर्घकाल का निवेशक जो है, उसको ईयर ऑन ईयर ज्यादा काम की है। बाकी ऐसा होता है कुछ कंपनी जैसे सीजनल होती हैं, तो कोई क्वार्टर ऊपर जाता है, कोई क्वार्टर नीचे जाता है। किसी क्वार्टर में कंपनी की सेल्स स्लो डाउन हो जाती हैं, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट में किसी क्वार्टर में ऐसा भी होता है कोई खर्चा कंपनी ने बड़ा बुक कर दिया। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशक के लिए हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी बेहतर रहेगी। शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उनके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर का फर्क पड़ता है, क्योंकि हर क्वार्टर के जब रिजल्ट घोषित किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको हम कॉर्पोरेट रिजल्ट, जैसे अब आजकल का सीजन चल रहा है, जनवरी का कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, तो उन स्टॉक्स की मूवमेंट हम उन क्वार्टर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। पर लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ईयर ऑन ईयर बेहतर रहेगा। अमित, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको आगे से क्लैरिटी रहेगी। जी हाँ, ये चलें गुजरात, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं धीरज। बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सर, मैं टी बिल्स के बारे में जानना चाह रहा था। जैसे हम FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम हमारी मूडी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। पर ट्रेजरी बिल में जब इन्वेस्ट करते हैं तब यूनिट अलॉट होने के बाद कुछ अमाउंट वापस आ जाता है और फिर मैच्योरिटी होने के बाद हमें पूरा पैसा मिलता है। तो ये किस तरह से काम करता है? थैंक यू सर। देखिए, ट्रेजरी बिल्स भी एक प्रकार का सेफ निवेश है, जहां फिक्स डिपॉजिट्स में आपको पता होगा, मैं सभी श्रोताओं के लिए बता दूं, DICGC जो होता है कि आपकी 5 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट बैंकों में इंश्योर्ड होती है। अगर बदकिस्मती से कभी ऐसा हो कि कोई बैंक फेल होता है, हालांकि हाल के हमारी रिसेंट मेमोरी में कोई हुआ नहीं है,
तो 5 लाख रुपए तक का आपका फिक्स डिपॉजिट सिक्योर्ड है, उसके ऊपर फिर वो लॉस माना जाता है। ट्रेजरी बिल्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रेजरी बिल्स क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होते हैं और सरकारी, आप एक प्रकार से सरकार को लोन दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें जो आपने प्रक्रिया बताई ऐसे ही है। अगर ट्रेजरी बिल्स डिपेंड करता है उनकी मैच्योरिटी कितने दिन की है, मान लीजिए 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो उसमें समय समय पर ब्याज आता रहता है और उसमें बीच में कुछ तो कई जगह ट्रेड भी किए जाते हैं, आप उसको ट्रेड करने के लिए भी डाल सकते हैं। तो ये धीरे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा ट्रेजरी बिल उठाया हुआ है। आपने 10 साल वाला उठाया हुआ है, 15 साल, और उसमें ब्याज की पेमेंट किस प्रकार से, इस पर ये निर्भर करता है। आइए चले मुंबई, एक बार फिर से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो बढ़ रही है, मोर देन 2 लाख, 2.5 लाख के ऊपर चांदी हो गई और गोल्ड भी जा रहे हैं, तो उसको आप बढ़ती ये जो इकोनॉमिक के लिए बड़ा हर्डल समझते हैं क्या? और ये ऐसे जो रेट बढ़ रहे हैं उसके वजह से जो विकसित देश है तो उनके लिए इकोनॉमिक के लिए कुछ खतरा है क्या? चलिए रत्नाकर जी, गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बढ़ना इकोनॉमी के लिए खतरा है, ऐसी कोई खतरे वाली बात तो नहीं नजर आती है। ये सच है। हम भारत की बात करते हैं, भारत में 99% गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है ये बात हम ध्यान रखें। और गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस रत्नाकर जी, न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है जिसको हम कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, भारत में ट्रेड किया जाता है MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। तो भारत के आर्थिक पैमानों से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इतनी इंपैक्ट नहीं होती हैं, ना के बराबर होती हैं। हाँ, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले ऊपर नीचे जाता है तो थोड़ी बहुत आपको गोल्ड की प्राइसेस, क्योंकि इंपोर्टेड ज्यादा है, तो वो किया जाता है। बाकी देशों की आपने बात करी, ऐसा कहा जाता है अर्थशास्त्र में कि अगर गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ये कहीं वैश्विक स्तर पर एक मंदी का संकेत देती है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, रिस्क को हेज करने का एक माध्यम माना जाता है। तो ऐसा लगता है दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को, सेंट्रल बैंक्स को, ट्रेजरीज को, कि कहीं शायद मंदी आहट दे रही है, ऐसा कभी कभी कहा जाता है। पर अब ऐसा, हालांकि वैश्विक संकेत देखें तो मैं जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं को हम एनालाइज करते हैं तो कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट सुनाई दे रही है, तो कहा भी जा सकता है। पर जरूरी नहीं है खाली मंदी की वजह से, और बहुत सारे कारण है। किसी दिन गोल्ड सिल्वर पे गौरव मनोज ऐसा करेंगे, किसी दिन खाली मार्केट मंत्रा की जगह हम गोल्ड मंत्रा करेंगे, तो मुझे लग रहा है उसमें हम खुल के बात कर सकेंगे। जी, एब्सोल्युटली। From Delhi, we have a caller, Mr. R.S. Dahiya. Welcome. Please ask your question, Mr. Dahiya. नमस्कार। नमस्कार जी। कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार भैया साहब। कोहली जी, मेरे फोन को काटना मत, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे एनालिसिस चाहता हूँ। एज ऑन टुडे, फॉर ए कॉमन इन्वेस्टर इन द टोटल सिनेरियो, we have recently touched all-time high, and we are a little less than all-time high now. But except financial sector, most of the mutual funds portfolios are negative return of 5% to -10%. Gold and silver have already touching rooftop high. There is hardly any headroom for that. And bank FDs, after paying income tax, there is hardly any return. So please come to the question, Mr. Dahiya. Hello. आप प्लीज अपना सवाल भी पूछ लीजिए, क्योंकि कॉलर्स काफी लाइन में है। What should a common investor should do even if the Trump deal doesn't come through? What will be the fate of the normal, stock market, better days, and the mutual fund positive environment? Mr. Dahiya, in such a situation, I think we could get the crux of what Mr. Dahiya wants to ask. I think in such a situation, the best approach is to have a diversified asset allocation strategy. That is, you should not put all eggs in the same basket. You should have a little bit in metals, a little bit in mutual funds, a little bit in stocks, some amount in FD for the sake of liquidity, and maybe some amount in real estate as well. So when the situation is so volatile, and when there is global uncertainty, when there is global geopolitical instability, geo-economic instability, the best approach is to have a diversified portfolio, so that if a particular asset class starts to move very sharply, you are protected by other asset classes. So Mr. Dahiya, your question is very, very wide and requires a very, in fact, the answer is even larger than your question explanation. So I think that is what I can say in a summarized manner. Maybe you can ask again next time and divide your question into fragments so that we are able to answer one at a time. You asked too many things together. All right. दिल्ली से ही हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी, स्वागत।
जगदीश जी सवाल पूछ लें, आप जुड़ चुके हैं। हाँ जी नमस्कार जी, मैं जगदीश जोशी नांगलोई दिल्ली से जी। तो पहले तो एक्सपर्ट को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। तो हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन एक ऑनलाइन पेमेंट है, जैसे कि आजकल सारी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, चाहे किसी का बिल हो या कोई परचेजिंग हो, ये तो खैर अच्छी बात है, चलो मतलब आदमी का टाइम भी और मतलब कई तरह की सुविधा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि वेल एजुकेटेड लोग भी ना इसकी चपेट में आ जाए, साइबर स्कैम हो रहा है और इस तरह का हो रहा है। तो इसके पीछे मतलब गवर्नमेंट ने ये तो ऑनलाइन का तो अच्छा बनाया, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इसके पीछे जो ये स्कैम हो रहा है, इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की कोई ठोस, मतलब अगर जो स्कैम हो रहा है उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है ठोस, मतलब ज्यादातर वेल एजुकेटेड लोग इसके लिए मतलब इसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जरा बताएंगे सर? मुझे लगता है जगदीश जी दो चीज़ों को यहाँ मिक्स हो रही हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं जगदीश जी, उसमें अब बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म घुसाए गए हैं। OTPs हैं, फेशियल ID वेरिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लाई गई हैं, सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आप जिन स्कैम्स की बात कर रहे हैं, शायद जगदीश जी का जो डिजिटल अरेस्ट टाइप स्कैम्स होते हैं, जिसमें लोग फंस जाते हैं, आपको झूठा कोई अफसर कोई डिपार्टमेंट का बन के आ जाता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उस तरीके की चीज़ को। तो मुझे लगा जगदीश जी, दो ऑनलाइन स्कैम तो बहुत प्रकार के होते हैं। आपने ऑनलाइन पेमेंट की बात करी, ऑनलाइन पेमेंट में कोई इतना बड़ा स्कैम हाल में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब से और जैसे जब कुछ आता है संज्ञान में, तो जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NPCL, जो कि इसको करती है, वो उसका सिक्योरिटी फीचर लाती जाती है। आप जो बात कर रहे हैं स्कैम्स की, वो डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है। तो डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट दोनों चीजों को मुझे लगता है जगदीश जी मिक्स कर रहे थे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक शरद, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट it's not all those who get fixed in scams have somewhere broken the protocol as set by the government. So if you break the protocol, that's when you get caught in a scam. Otherwise, UPI is safe. Yeah, UPI is very safe. In fact, initially when UPI came, Gaura, there were certain weaknesses inherent in that, but technology, I feel, evolves in itself. Necessity is the mother of invention. As people came to know, I think they pluck it immediately, and I think probably Jagdish ji is having these two things in his mind, and is linking online payments to digital scams. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कई श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सबों से आग्रह कि लाइन पर बने रहिए धैर्य के साथ। कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। देश के घरेलू शेयर बाजार में दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी इस सप्ताह बिना किसी खास फेरबदल के बंद हुए। फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का असर सूचकांक पर दिखा। उधर PSU बैंक और मेटल सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। तीसरी तिमाही में कंपनियों की आय बेहतर रहने की उम्मीद और भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने संबंधी संभावनाओं से भी बाजार को थोड़ा समर्थन मिला। हालांकि इस दौरान बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और FIIs की बिकवाली के चलते सावधानी की धारणा भी दिखी। आय के मोर्चे पर उद्योग के बेलवेदर द्वारा अपने रेवेन्यू गाइडेंस को ऊपर संशोधित करने से लोगों का रुझान IT क्षेत्र में दिखा। बैंकिंग क्षेत्र ने भी बेहतर प्रदर्शन दिखाए। आरंभिक परिणामों से परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार और बेहतर आय प्रदर्शन किए जाने का संकेत मिला है। कारोबारी सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 6 अंकों की मामूली कमी के साथ 83,570 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक बढ़त के साथ 25,694 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो BSE मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.3% नीचे आया। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% से अधिक लुढ़क गया। इसी सप्ताह के दौरान अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 70 पैसे कमजोर हुआ, 90 रुपए 86 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। और धैर्य के साथ बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बेंगलुरु से NR प्रसाद। प्रसाद साहब स्वागत, सवाल पूछिए। Hi, good evening, Mantra. This is NR from Bangalore. Hello, Gaurav ji. Hello, Manoj ji. जी नमस्ते, स्वागत आपका। Two questions, sir. Sharad ji, the first question is the budget session starts from the next week onwards. Print media said that the agriculture will be given more trust for 627. Other than the agriculture sector, any other which will be given more focus, please let me know. My second question is for this ITR filing. There are many taxes are paid. State government also takes many of the taxes like house tax, water tax. So many areas, sectors we pay taxes. Whether those can be set off when I file the return this year for 24-25.
25-26. Thank you. These are my two questions. All right, Mr. Prasad, although your line had some disturbance, but thankfully we could follow what you were saying. Your first question is regarding the budget session as to, apart from the agricultural sector, which other sector is going to be more in focus. I feel defense, space technology, startups, youth, women, manufacturing, these are the sectors which are going to remain in focus because they have been very, they have been engines of growth for the country. So those are the sectors. Your second question is regarding ITR filing as to whether other taxes can be deducted. I'm just trying hard to recollect. I think if you have income from house property, then the house tax you have paid on rental income, that can be deducted, but not many taxes as far as other local municipal taxes. In fact, it comes in the category of municipal taxes. So one of the 5 heads of income is income from house property, and from that you can deduct your municipal taxes. Rest of the taxes, unfortunately, they do not form, although if you're running a business and you're preparing a profit and loss account, and any tax is part of your expense, then of course that can also be deducted, Mr. Prasad. Otherwise, if you can ask us specifically, then maybe I can tell you specifically. Your question was very general. So those are the 2 taxes that I could recollect. From Delhi, we have Keshav. Keshav, welcome. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी। शरद जी नमस्कार। नमस्कार जी। शरद जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हम अभी सोने को होल्ड करके रखें या बेच दें, कि अभी और 2 लाख तक जाने की उम्मीद है। और दूसरा एक सवाल और है, जैसे कि अमेरिका के जो ट्रम्प है, तो ये मोहल्ले का एक बिगड़ा बच्चा होता है ना, अपनी बदमाशी दिखाता है कि मैं गुंडागर्दी है, मैं खेलने नहीं दूंगा, मेरा बैट है तो ये करूंगा वो करूंगा। टैक्स का जो धमका रहा है ये पूरे देश में इन्होंने एक अत्याचार कर रखा है। तो जब तक ये जाएंगे नहीं, जब तक वर्ल्ड में शांति नहीं होगी। केशव, आपने गोल्ड होल्ड कहा, तो गोल्ड को होल्ड करें या नहीं करें, देखिए ये तो इसको $1 बिलियन क्वेश्चन हम कहते हैं। जो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को ऊपर और नीचे ले जाते हैं, मैं सलाह दूंगा उन फैक्टर्स पे नजर रखी जाए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डॉलर की कीमत है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, तो ये फैक्टर्स पे आप नजर रखें तो आपको स्वयं ETFs में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कितनी हो रही है, तो इन फैक्टर्स पे नजर रखें। मुझे लगता है मनोज गौरा, लोग अपने आप गोल्ड सिल्वर, आजकल सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोल्ड को आगे बढ़ेगा, सिल्वर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हर व्यक्ति के मुंह पे यही सवाल है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उन फैक्टर्स पे नजर रखिए। अगर आप उन फैक्टर्स पे नजर रखते हैं तो आपको स्वतः पता लग जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका दूसरा वाला सवाल नहीं है, आपका दूसरा वाला एक राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओपिनियन है, तो इसके बारे में हम अपनी ओपिनियन रिजर्व, आपने अपनी ओपिनियन दी है, हर किसी को अपनी ओपिनियन देने का हक है, और हम ओपिनियन इस मामले में अपने रिजर्व रखना चाहेंगे। उस पर हम क्योंकि सवाल नहीं है तो मुझे नहीं लगता हम जवाब देंगे। जी बिल्कुल। आइए चले महाराष्ट्र, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जीवन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मार्केट में टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। और अपना अभी जो बजट रहेगा 1 फरवरी को, तो इसमें कौन से सेक्टर का फोकस जास्ती रहेगा? जीवन जी, आपसे पहले भी किसी ने ये बात पूछा था, मेरे ख्याल NR प्रसाद साहब थे बैंगलोर से, जिन्होंने सेम सवाल पूछा था। मैं फिर दोहरा देता हूँ। भारत एक कृषि आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है। आज भी 50 से 60% हमारी आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहती है। तो कृषि पर तो फोकस रहेगा, महिलाओं पर, युवाओं पर, डिफेंस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, स्टार्टअप्स पर, ग्रीन एनर्जी पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, यहाँ पर आपको फोकस मिल सकता है। बाकी आने वाला बजट है, देखिए मुझे लगता है भारत की जो विकसित भारत का संकल्प और लक्ष्य हमने तय किया है, उसी को तेजी से आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा, और हमारी ग्रोथ स्टोरी बाकायदा अपनी जगह बनी रहेगी और उसमें और रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। इससे लंबी दूरी की यात्राएं तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेंगी। 16 आधुनिक कोच वाली इस ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्रियों की है। किस तरह ये वंदे भारत पूरी श्रृंखला
हमारे रेलवे तंत्र की काया पलट कर रही है और साथ ही साथ इसमें जो तकनीक उपयोग हो रही है उन सबों पर संक्षिप्त आपकी टिप्पणी। देखिए, वंदे भारत मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेन है और जो लोग विदेशों में ट्रैवल करते हैं, अगर आपने ट्रेन की शेप और वहां सुविधाएं देखी उसको ये मैच करती है। तो हमारी रेलवे में बहुत बड़ी अपग्रेडेशन, मनोज, जिसको मैं मानता हूं, मुझे लगता है भारतीय यात्रियों को एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो शायद वो कभी यूरोप में देखा करते थे, सोचा करते थे, अनुभव किया करते थे। आइए आगे बढ़ें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के प्रीमियर डेविड एबी के साथ भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने तथा दुर्लभ खनिजों, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंध प्रगाढ़ करने और नए अवसर खोलने के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की है। We look at the US markets. Major US indices closed nearly flat in a choppy trading session yesterday. Investors were also cautious of making big bets ahead of the long weekend, with the stock market shut on Monday. The Dow Jones Industrial Average dipped almost 0.2%, while the Nasdaq Composite Index, as well as the S&P 500, ended marginally down. For the week, all three major indices posted losses. The Nasdaq declined around 0.7%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Dow fell 0.3%. Meanwhile, the fourth quarter earnings season kicked off this week with large US banks posting mostly solid results. However, shares of banks and other financial institutions were pressured by worries over President Donald Trump's proposed one-year cap on credit card interest rates at 10%. Sharad, before we move on to oil prices, quickly, your views on the story we just read. I think the US markets are at crossroads at this point of time because the geopolitical moves in the US with regard to Greenland, Iceland, Cuba, Mexico, Colombia, I think they are also counting on the minds of the US investors. So what will be the next move of President Trump? I think the market is watching as closely as people of these countries are, Gaurav. Right. Oil prices, global crude oil prices advanced yesterday as traders executed trades by buying crude ahead of an extended weekend and lingering supply concerns. On Friday, Brent crude futures added almost 0.6% to settle at $64.13 per barrel, while WTI crude futures rose over 0.4% to close at $59.44 per barrel. For the week, Brent gained over 1.2%, while WTI climbed over 0.5%. So, Sharad, when we look at oil prices, and we see that oil is also fluctuating and there is uncertainty in the market. Gold, we know, is rising. Silver. In terms of commodity, oil isn't commodity. What do you think of investment in that? I think, oil investment can't be made directly, Gaura. It's only traded in the MCX. So Right. you can't buy actually barrels and keep it at home. You can only go for contractual buying and allow it to expire next month. You can roll it over. But I think oil is going to be very volatile. The situation in Middle East, although some of the tensions in Iran have sort of subsided after President Trump said that, things are happening in Iran and he may not after all go for a kind of an invasion. But then it is going to be very volatile because the situation is very, very emerging, very evolving, and anything can happen any day. So indirect investment also in in organizations or companies linked to oil. Oh yes, that can always be done, but I feel it's going to be very volatile. So investors are advised caution. If you ask me personally, I would like to avoid oil-based investments at least for some time. Slippery. Yeah, it is. It is undoubtedly. यानी तेल के दाम इसी तरह भू राजनीतिक तनावों के चलते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक सीमित दायरे में रहेंगे ऐसे आसार लग रहे हैं दुनिया की स्थिति को देखते हुए। बस यहीं पर श्रोताओं, आपकी ओर से हम अपने विशेषज्ञ शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद. Thank you so much. Absolutely, Mr. Sharad Kohli. Thank you so much for coming on to our program. My pleasure. And now, before we close a look at the headlines once again, South Asia remains brightest growth spot among emerging regions anchored by India, highlights World Economic Forum report. Benchmark domestic equity indices wrap up week on a flat note, and global crude oil prices log weekly gains. That's all for today. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.